All right, girls, let's start with the session. In today's world, road and transport has become an integral part of every human being. Everybody is a road user in one shape or the other. The present transport system has minimized the distances, but it has, on the other hand, increased the life risk. Every year, road crashes result in loss of lakhs of lives and serious injuries to crores of people. In India itself, about 80,000 people are killed in road crashes every year, which is 13% of the total fatality all over the world. Man behind wheels plays an important role in most of the crashes. In most of the cases, crashes occurs either due to carelessness or due to lack of road safety awareness of the road user. Hence, road safety education is an essential as any other basic skills of survival. On the occasion of Road Safety Awareness Week, which is observed from 11th to 17th January 2022, this year Cultural Committee has taken an initiative to spread the awareness to our student leaders with a hope that they would pass on the message and educate it further to a larger crowd. Most important asset which we all have with us is our lives. The least we can do is safeguard our lives by implementing as many precautionary measures as possible and live a healthy life. On this occasion, we welcome our guest speaker, Mr. Rohit Chandrasekharan from Tech and Wheels, who would be guiding us on this journey of road safety precautions. May I now invite Ms. Avantika Parab from TYBCA and President of Dr. BMN College of Home Science to introduce our guest speaker. Over to you, Avantika. Thank you, Rakesha ma'am. A very good afternoon to one and all present here. I, Avantika Parab, President of Dr. BMN College of Home Science, would like to take this opportunity to introduce our today's speaker, Mr. Rohit Chandrasekharan. He is the co-founder and editor of technology automotive e-magazine techandwheels.com. He has started his career in automotive journalism with Override magazine as news correspondent in the year 2010. There he used to test new vehicles and give his review on the same. In 2011, he joined as a lecturer in the Department of Automobile Engineering in a college based in Pune. Along with lecturership, he was in charge of various committees which focused on extracurricular activities for students, which included car design and development, innovative projects, and road safety awareness. During this period, he developed his own website named Tech and Wheels, with articles and posts focused on recent happenings in the field of automobile and technology. In 2016, Mr. Rohit got an opportunity to work with automotive OEM as content developer in the Department of Training and Skill Development in Mumbai. It was this time when he joined biking groups and used to participate in various ride events. The rides not only made him happy, but taught many crucial things which he wanted to spread across to the general audience based on his experience. This led him on a path which is now converted into a mission named Think Road Safety Awareness Program. Through this mission, he has been educating the society on how self discipline and awareness is vital for personal safety on Indian roads. Mr. Rohit has conducted more than 100% sessions for colleges, schools, and corporates with 5,000 plus eager audience till date, comprising students and teachers. Sir is currently working in an automotive company as a content developer in the training department. We welcome you, sir. Thank you so much, Avantika. I now request our guest speaker, Mr. Rohit, to please take your session, sir. We are eagerly waiting. Thanks a lot. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So I'm just sharing my screen over here. Okay, so is the screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So good afternoon all, and a great welcome to the
road safety awareness program named Think. So this will be more of an interactive session because I don't want, like I will speak from one end and you will be listening. And this will be mix of all the languages, not all languages, basically Hindi and English. And if anyone wants in Marathi also, but I think Hindi and English is comfortable, right? Yes, sir. Right? Yeah. तो ठीक है. सो रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ठीक है. तो ये जो सेशन है, अभी कुछ ही देर पहले बोला गया कि ये रोड सेफ्टी वीक है, इसलिए हम लोग रोड सेफ्टी अवेयरनेस का अभी थोड़ा चालू किया हुआ है सेशन वगैरह. बट सी, दिस डज नॉट एंड इन अ वीक. तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक हफ्ता हमने अवेयरनेस ले लिया एंड वी आर अवेयर ऑफ व्हाट द रोड सेफ्टी इज, वी फॉलो ऑल द रूल्स एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम लोग अपनी मनचाही तरीके से हम बिहेव करेंगे रोड पे, ऐसा नहीं है. सो रोड सेफ्टी वीक इज थ्रू आउट द ईयर, 365 days ये चलते रहने वाला है. इट इज़ नॉट लाइक एक ही दिन, एक या हफ्ता या एक दिन हम सेलिब्रेट करेंगे और दूसरे उसको भूल जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज अबाउट the precautionary measures which we need to take while on the road, how to be responsible on the road, how to be a good citizen, okay, how it will be beneficial for others. ये सब चीज़ें जो है ये हम देखेंगे. Sir, we lost you, I guess. I'm audible now? Yeah. Yes. Okay. Let's just share my screen over here. Okay. Okay. So let us start with the program. So as I said, this road safety week thing, it is not like we'll be celebrating this or we'll be following all the rules for a week and then forget. So road safety should be followed throughout the year, 365 days, and it is very important. तो ये जो सेशन है इसमें इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है, तो आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है. फाइन. So let us start with the session. I'm going to the next slide. Okay, so first of all, why think? Okay, because सोचने की बात है ये, मतलब क्यों हम प्रोग्राम कर रहे हैं. ये प्रोग्राम होने के बाद रोड पे जब हम उतरते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सोच के उतरना पड़ता है. दैट इज व्हाई द प्रोग्राम इज नेम्ड एज थिंक. देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड. फाइन. तो रिकिशा मैम, क्विज के लिए लिंक कैन यू फॉरवर्ड द पार्टिसिपेंट. Sir. So, girls, you can check in the chat box. There's the link given. Just try solving it. Is questionnaire of almost 10 questions only. You're given 3 minutes, so your time starts now. Okay, so we have a total time of 3 minutes. So once it is done, just let us know via chat box only. The Google form link has been shared in the chat box. I hope you are able to open the link, girls. Yes, ma'am.
One more minute to go. We have got almost 18 responses, I guess. So can we close the link? So can we close the link? Yeah. It was 3 minutes, so I think it's done, right? You can close the link and just give me a brief idea of what's the scoring percentage. So you can share the screen. Or should I share the screen? Yeah, you can. Okay, so can you stop the recording? Stop the screen sharing then? I will share the screen from my side. So it's a stop sharing, right? Yeah. I'll stop sharing and you can share the screen from your side. Okay, so how was the quiz? I would just like to know the response. कैसे था quiz? Simple, tough, hard? Interesting. Easy. अच्छा, okay. Okay, fine. तो ये response है. Okay, so this is summary. So okay, identify the symbol. Okay, most of them knew the symbol. Okay, next, identify the symbol. Cast stop. Okay, next, identify the symbol. Cast to stop at pedestrian. Fine. Then school ahead. Great. After that, should not. Okay, while driving, you should not overtake from the left or the great. Okay, next. Who did fine? If a boy or girl underage. Okay. So the owner of the two-wheeler gets fined. Okay. Are you allowed to park the vehicle on footpath? No. Great. Next, please. Identify the logo. No horn allowed. Okay. Great. Which of the following statement is correct? Riders on two-wheelers are less likely to be seriously injured when if they are wearing the helmets. Okay. Fine. Identify the number plate. Great. So identify the number plate is area जहाँ पे बहुत लोग समझा ही नहीं नंबर क्या है. बाकी सब में तो अच्छा खासा नॉलेज है. नंबर प्लेट के बारे में कांट अंडरस्टैंड. ग्रेट. तो बताइए आपको इस ये क्विज में से एक तो मुझे समझ में आया कि यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक्स.
राइट, नंबर प्लेट के इशू में क्या हो गया था? कैन एनीवन एक्सप्लेन? Sir, may I? Hello. Yes, tell. Sir, actually the number plate was not correct. There was written the word was Navra, which is not actually allowed. So the actual number plate should have the number given by the register. That is when the vehicle is registered, the number has been given, issued. So ideally वो होना चाहिए था, but there was some name written. So usually people do this these days. So नाम वगैरह लिख देते हैं. So the signal and all पे अगर cross किया तो the camera cannot capture and all of those things. So the number Right. plate was ethically not correct. So did you understand what the number is? No, sir, it was not possible because the word was even bigger than those numbers. Like that Navra word was bigger than Okay. the number. I mean, some 12 or something was written. ठीक है, fine. Correct. So ठीक है, now see whatever questions have seen, like most of them are aware of the basic laws. ठीक है, तो just want to also know कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? कैन आई गेट ओनली 5 रिस्पॉन्स यस करके? ड्राइविंग लाइसेंस है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, or you can just put your hands up on the chat or the thing. That is also okay. Do you have a driving license? Okay. Fine. Okay, so most of them have driving license. Fine. ठीक है. So I will just conclude a conclusion कि देखो अभी ये क्विज के थ्रू एक तो मालूम पड़ा है कि you are aware of the basic laws. Okay, basic स्लो स्पीड लिमिट क्या है, या पार्किंग किधर नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हॉर्न यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे स्लो डाउन करना चाहिए, ये जो बेसिक सिग्नल्स जो है ये आप लोगों को सभी को पता है। और ये कुछ नई बातें तो है नहीं, क्योंकि बिकॉज एवरीवन हु इज ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ टू व्हीलर सबको पता ही है, क्योंकि ये लाइसेंस लेते टाइम पूछते ही जाते हैं। और पैन इंडिया अगर आप देखेंगे, पैन इंडिया में भी सबको ये बारे में पता है। तो ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम जो इसमें नया क्या होता है, मीन्स जब भी आप रोड सेफ्टी की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट फॉलोइंग सिग्नल्स, रेड सिग्नल पे रुको, जेब्रा क्रॉसिंग पे मत रुको। तो ये सब जो चीज़ें हमें पता ही है, फिर रोड सेफ्टी के बारे में हमें बार बार अवेयरनेस की जरूरत क्यों है? See, the fact is, like, just a second, 1,50,000, ठीक है, ये जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,50,000 इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई ऑन द रोड एक्सीडेंट एवरी ईयर। ठीक है, 1,01,50,000। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ विच जो डेथ रेट चल रहा है इन रोड एक्सीडेंट, और दिस इज लाइक 11% ऑफ द टोटल फैटिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती है उसका 11% जो है इंडिया में ही होता है। और ये क्यों हो रहा है? सी, एक तरफ सबको लॉस पता है, सब कुछ पता है, ऑल आर वेल एजुकेटेड, लाइसेंस मिलते टाइम दे आर एजुकेटेड अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, तभी भी ये जो नंबर्स है दिस इज वेरी क्रिटिकल। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। मतलब एक वर्ड होता है, चलता है या कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जो वर्ड होता है दिस इज व्हाट मेक्स दिस नंबर्स। ठीक है, एंड दिस इज अ क्रूशियल थिंग। 1,50,000 बहुत क्रूशियल थिंग है। गवर्नमेंट को भी हर साल एक इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, ऑटोमोटिव कंपनीज को अपनी जो गाड़ियां है सेफर स्ट्रॉन्गर करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ अ सिटीजन while on roads, but as a citizen we are not responsible enough। हम लोग बहुत नेग्लिजेंट रहते हैं, हमें सब कुछ पता रह के भी हम लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट में बोल देते हैं अरे कुछ नहीं होता, चल जाता है। So this is not right, and every time this road safety awareness things comes in, okay, through this lecture मैं lecture नहीं, sorry, lecture is the wrong word, through this interaction I would just like to have discussion on few points जो आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, but still we will just go through some point, और अगर आपको कोई doubt है you can ask upfront। Fine, so shall I proceed? Yes, sir. Yeah, okay। Yes. So how to become responsible? So there are 8 mantras। ठीक है, 8 मंत्र है। अगर ये 8 मंत्र में से थोड़ा भी आप ये करेंगे तो इट विल ब्रिंग अ चेंज इन द रोड सेफ्टी के पूरे क्या बोलते हैं,
thing is, you have to follow these 8 mantras. Now ये 8 mantras have just shortlisted for you guys, क्योंकि 1 घंटे में तो उतना ही होने वाला है. 80, 800, 8 लाख mantras भी रहते हैं, but 8 mantras पे हम discussion कर लेते हैं. So first is always say to helmets. See, because without helmets कोई भी road safety program चालू भी नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है. So helmets एक बहुत ही important चीज है. Helmet के types सभी को पता ही है. Sorry, there are different types of helmets: full face, modular, off-road, half, open face and dual sport. ऐसे different helmet के size आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. Just to ask, which do you think is the safest helmet of this six? Anyone? Full face. Sorry. Yeah. Full face. Modular. Full face. Okay. Any other opinion? बहुत लोग तो आजकल ये हाफ फेस है, ब्लैक कलर में दे also wearing that, right? Then why full face? Open face भी लोग पहन रहे हैं. So They full can face wear helmet protect the spine during an accident. The full face helmets protect the जाता है. ओके. मॉड्यूलर इज ओके. मॉड्यूलर में क्या होता है कि ये जो नीचे का पार्ट होता है, दिस कैन बी डिटैच्ड. इट इज नॉट सेफ बिकॉज इन केस ऑफ इम्पैक्ट हेलमेट 2 पीस में हो जाएगा. सो मॉड्यूलर इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. ऑफ रोड इज ओके, बट ऑफ रोड में क्या होता है, ये जो एरिया दिख रहा है, यू नीड अ स्पेशल गॉगल्स ओवर देयर. एंड ये जो ऑफ रोड रेसिंग होता है उसमें ये हेलमेट यूज किया जाता है. हाफ फेस एंड ओपन फेस नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि ये जो एरिया है दिस इज ओपन, तो ये जॉ इज नॉट प्रोटेक्टेड. ड्यूअल स्पोर्ट अगेन इट इज टाइप ऑफ ऑफ रोड, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर अ फुल फेस हेलमेट. बोलते हैं हम गर्मी लगती है या वेंटिलेशन नहीं होता, पीछे से जो गाड़ी आती है वो उसका हॉर्न सुनाई नहीं देता है, ये सब एक बहाना होता है. बेसिकली दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, एक बहाना होता है. फुल फेस इज ऑलवेज रिकमेंडेड, तो फुल फेस के साथ ही जाना चाहिए. हेलमेट कलर विच वुड यू प्रेफर? सेकंड क्वेश्चन, कौन सा प्रेफर करोगे? White. एनीवन? व्हाइट एंड व्हाई? व्हाई? White. क्यों पर व्हाइट क्यों? So white, it will be visible in dark. It will Sorry? be visible at night. ओके. पर ब्लैक स्टाइलिश दिखता है. एनीवन हो जो ब्लैक लेगा हेलमेट इसमें से? एनीवन? देखो यहाँ पे कोई आपको स्कोरिंग तो नहीं देने वाला है, मार्क्स का या एग्जाम का कोई संबंध नहीं है. इफ यू कैन टेल योर ओपिनियन ओवर हियर, कि मैं तो खुद ब्लैक हेलमेट यूज करता हूँ. सिंपल. सर ब्लैक का ये भी डिसएडवांटेज है कि आफ्टरनून में वो ज्यादा गर्म हो जाता है. राइट. ओके. तो हम ज्यादा करके व्हाइट प्रेफर करते हैं हमेशा आफ्टरनून में. ओके. सो देखिए, व्हाइट एंड ब्लैक हेलमेट कलर जो रहेगा प्रॉब्लम नहीं है, बट यस यूजिंग हेलमेट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. और व्हाइट में ये दिया गया है कि व्हाइट बीइंग अ ब्राइट कलर, व्हाइट फ्लोरोसेंट कलर जो होते हैं, दिस इज मोर विजिबल. ओके, एज राइटली सेड, ये जल्दी दिख जाता है रात के टाइम पे जब राइडर 2 व्हीलर चलाता है, तो दिस इज मोर विजिबल. और जो क्रैश स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो क्रैश में इन्वॉल्व है 24% लोअर क्रैश व्हाइट हेलमेट लोगों के साथ हुआ था. सो दिस अ कंपैरिजन बेसिकली. तो व्हाइट हेलमेट और ब्राइट कलर्ड हेलमेट्स इज रिकमेंडेड. अगर आप उस पर रिफ्लेक्टर वगैरह लगाते हो तो वेल एंड गुड. जो बाइकर्स होते हैं वो रिफ्लेक्टर इस पे लगा देते हैं. हेलमेट साइज देखिए, घर पे तो नॉर्मली समझो एक हेलमेट है घर पे, राइट? अपने डैड का रह गया, ब्रदर का हेलमेट है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि हम वही हेलमेट उठा के गाड़ी चलाने जाते हैं. बट नॉट नेसेसरी कि वो हेलमेट और आपका जो सर का हेलमेट है वो सॉरी साइज जो है वो मैच ना हो. तो इट इज नॉट रिकमेंडेड. एवरी हेलमेट हैज टू बी पर्सनल. देयर इज अ मेजरमेंट लेने का तरीका होता है. जो टेप होता है, मेजरिंग टेप, वो आपके फोरहेड के यहाँ पे ऐसा बाउंड करना है, और जो टोटल साइज है इन सेंटीमीटर्स और इंचेस आपको यहाँ पे देखना है. तो हेलमेट का साइजेस बहुत है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइज यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर हेलमेट.
दूसरा देखना है हेलमेट लेने के बाद इट शुड नॉट बी लूज फिटेड, मतलब जो आपके चीक्स होते हैं, चीक्स के सराउंड देयर शुड बी अ स्मॉल गैप, ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी जस्ट एक स्नग फिट बोलते हैं वो, वैसा उस तरफ से रहना चाहिए। तो सेंटीमीटर और इंचेस में आप ले लो, और आप किसी भी हेलमेट शॉप में जाते हो, इफ यू आर कंफ्यूज और इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द हेलमेट साइज, देन you can do this method, and this is the method that is followed everywhere, ठीक है, because every brand has a different size, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क तो होता ही है। So this is the better way to go with, and then personally check the helmet. Don't share the helmet with others, that is the most important thing. सर्टिफिकेशन, यस, सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हेलमेट के जो टाइप्स है बहुत सारे होते हैं। बहुत पहले लाइक यू कैन से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के हेलमेट्स भी अच्छे खासे आते हैं, विच कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज, 15,000। और जो बाइकर्स है, जो हाईवे पे आपने देखे होंगे सुपर बाइक वगैरह चलाते, दे यूज दोस हेलमेट्स। बट सी इंडिया में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ISI मार्क, एंड इफ एनी policeman stops you for checking the helmet और ISI मार्क नहीं रहेगा, so there is a chance that they can take an action against you. आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते सर ये हमने यूरोप से लेके आया, we have got it from America and that is certified according to their certification level, वैसा नहीं है। You have to it is preferred to buy an ISI mark helmet because that plays safe for both, right from law से झगड़ने के लिए और आपके लिए भी वो ठीक रहेगा। Ensure कि वो ISI सर्टिफाइड ही हो, और कुछ ब्रांड्स आपको देखना ही पड़ेगा। नेवर बाय अ हेलमेट फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, इन लोग के पास भी ISI मार्क होता है, बट दिस ISI मार्क का बेसिकली स्टिकर, 10 रुपया 5 रुपये का स्टिकर लगा देते हैं ISI मार्क का। नेवर बाय दिस, ये मतलब 100-200 रुपये कम में आ जाएगा दिस हेलमेट, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर लाइफ बाय बाइंग हेलमेट फ्रॉम रोड साइड्स। और ये जो पॉलिटिशियन होते हैं इनका सुनो ही मत, ठीक। Politicians are always you know on the favor of what do you say, votes, okay, उनको वोट जहाँ पे मिलता है वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। सिटीजन्स को अगर हेलमेट कंपलसरी किया तो फिर दे वुड अपोज, बिकॉज सिटीजन्स को भी अपोजिशन चाहिए कि नहीं मुझे हमें हेलमेट कंपलसरी नहीं चाहिए। दे विल ट्रैवल इन अ बिग कार, उनके पास बड़ा क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो, महिंद्रा XUV, ऐसे बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है, उनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ओके, सो नेवर लिसन टू देम, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। और हेलमेट पहनना ना पहनना ये लॉ के ऊपर डिपेंड मत रहो, थिंक अबाउट योर सेफ्टी। सी अभी देखो, अभी कोरोना वायरस का सीन चल रहा है, राइट, सब जगह ओमिक्रॉन भी अभी आ गया। बट नाउअडेज क्या हो रहा है कि जब हम बाहर निकलते हैं, व्हेन वी आर स्टेपिंग आउट ऑफ द होम, मास्क नहीं रहेगा तो वी आर फीलिंग गिल्टी, अरे कुछ तो मिसिंग है, एंड वी रन बैक एंड टेक द मास्क। तो वो अभी एक आदत हो गई है, राइट। देर आर कॉम्प्लिकेशंस, मास्क पहन के हम ज्यादा देर चल नहीं सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स तो है। तो हेलमेट के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द हेलमेट्स ऑन आवर हेड व्हेनेवर वी आर टेकिंग द की ऑफ द स्कूटर और मोटरसाइकिल। पॉलिटिशियंस का मत सुनो, क्योंकि अगर उनका सुन के गए तो दिस कैन हैपन। ओके, नाउ देयर इज अ कार व्हिच राइट्स, मेरे 18 वर्षीय पुत्र का निधन हेलमेट न पहनने कारण हो गया है, इसलिए कृपया हेलमेट पहने व अन्य को प्रेरित करें। नाउ दिस थिंग इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि हो सकता है इन्होंने भी पहले हेलमेट के बारे में सोचा नहीं रहेगा, एंड व्हेन अपने खुद का ही किसी का लॉस हो जाता है, देन दे कम अप विद सच टाइप ऑफ स्लोगन रिटर्न कि यार पहनो पहनो करके। सो ऐसा नहीं है। आप समझो घर से बोलेंगे सुबह हम सिर्फ ग्रोसरी लेने जा रहे हैं तो स्कूटर सामने दुकान है, मुझे हेलमेट क्यों चाहिए, वैसा नहीं है। हेलमेट इज नीडेड व्हेनेवर यू आर टेकिंग द की ऑफ योर स्कूटर और मोटरसाइकिल। सी दिस सेमिनार जो या वेबिनार है, इसके थ्रू मैं एक ही ये फॉलो करना चाहता हूँ, वॉट एवर इज मैसेज और वॉट एवर मैसेज इज पास्ड ओवर हियर, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपको फॉरवर्ड करना भी है आपके पेरेंट्स को। अगर आपके घर से आपके डैड या मॉम या भाई या बहन स्कूटर लेके जा रहे हैं और बोलते हैं यार सामने जस्ट 2 मिनट में जाके आ रहा हूँ, टेल देम कि हेलमेट लेके जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे दिस थ्रू दिस वेबिनार। एनी डाउट्स ऑन हेलमेट्स? No, sir. नथिंग? ओके फाइन। No, sir. ओके, उसके बाद आता है नो द कंट्रोल्स। ओके, अभी जहाँ तक देखा है कि कुछ लोग हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं, तो there's a concept called as T clocks, okay,
टी क्लॉक्स मतलब क्या है? तो टी इज फॉर टायर्स, ओके, सी इज फॉर कंट्रोल्स, एल फॉर लाइट, ओ फॉर ऑयल, सी फॉर चेसिस एंड एस फॉर स्टैंड्स. तो एनीवन कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय टायर्स एंड व्हील्स, और क्या चेक करना पड़ता है उसमें? There is proper air in the tire or the wheel. प्रॉपर एयर इन द टायर, ठीक है. नेक्स्ट, A tire So should it's not be punctured. punctured. टायर शुड नॉट बी Punctured. पंचर. ओके, सो बिफोर, अब जब गाड़ी सुबह निकलते हो कॉलेज जाने के लिए, कभी गाड़ी यूज करते हो, एक बार चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें है एयर है कि नहीं, पंचर तो नहीं है. ओके, नेक्स्ट. और कुछ? ठीक है, फाइन. सो व्हील्स एंड टायर्स में सबसे पहले चेक करेंगे कि टायर में एयर है कि नहीं, पंचर है कि नहीं. एंड सेकंड इज द ग्रिप. ओके, लेफ्ट साइड में व्हाट यू सी इज अ न्यू टायर. एकदम जब गाड़ी लेते हो तो एकदम उसमें ग्रिप होता है. दिस ग्रिप एक्चुअली प्रोवाइड्स ट्रैक्शन, जो है मतलब जो गाड़ी को रोड पे पकड़ बनाई रखती है वो ये ग्रिप करता है. बट यूसेज के टाइम पे ये ग्रिप निकल जाता है. बहुत सारे स्कूटर्स ऐसे हैं जो ये ग्रिप निकलने पे भी चलाते रहते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस. फाइन. तो ऑन एन एवरेज ये चेक करना है तो ये ग्रिप है या नहीं है. ये ग्रिप अगर खत्म होने आया होगा तो टायर को चेंज करना ही है. फाइन. ओके, नेक्स्ट इज, इस पे कोई डाउट टायर्स पे? No, sir. No, sir. कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? मींस व्हाट यू कैन चेक इन कंट्रोल्स बेसिकली, एनीवन? So The brakes. brake, ब्रेक, ओके, फाइन. oiling, whether your car is properly oiled or not. ओके, ग्रेट. सो सी विद टर्म्स ऑफ स्कूटर्स मेन चीजें होती है लीवर्स. ओके, ब्रेक लीवर होता है. ब्रेक लीवर एक बार व्हेन यू बिफोर स्टार्टिंग अ राइड एक बार बस गाड़ी को आगे पीछे करके देखिए कि ब्रेक एक्टिव है. दूसरा है जो वायर होता है ब्रेक का, जो वायर उसमें से कुछ आवाज आ रहा है या देखिए. स्विचेस जो होती है वो स्विचेस एक बार चला के देखिएगा. उसके जो हेडलैम्प टेल लैम्प ये फंक्शनल है या नहीं वो भी आप देखिएगा. सेकेंडली मिरर्स, पता नहीं बहुत सारे लोग जब गाड़ी खरीदते हैं मिरर्स निकाल देते हैं, सेइंग कि गाड़ी स्टाइलिश दिखता है या गाड़ी स्पोर्टी दिखता है. मुझे तो गाड़ी कोई स्पोर्टी नहीं लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने मिरर निकाल दिया हुआ है. सी बिकॉज मिरर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पीछे से जो गाड़ियाँ आती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऐसा भी स्टडी ये करता है कि 80% ऑफ द राइडर्स व्यू इज ऑन द रियर व्यू मिरर. ओके, फ्रंट के तरफ तो रहता ही है बट सबसे ज्यादा ध्यान उनका पीछे के मिरर में होता है, क्योंकि पीछे से गाड़ियां जो आती है उसका अंदाजा हमें नहीं रहता है. आगे का तो हमको व्यू क्लियर है बट पीछे से जो गाड़ी आती है उसका हमें अंदाजा नहीं रहता है. जस्ट वांट टू आस्क, फ्रैंकली एक आंसर दीजिएगा कि कितने लोगों के घर पे ऐसी गाड़ी है जिसमें मिरर नहीं है, और वो क्यों नहीं है? कोई है ऐसा? या आपके ब्रदर ने निकाला है या आपके डैड ने निकाला है या आप ही ने खुद ही निकाला है, ऐसा कोई है? सबके गाड़ी में मिरर है, चले Yes, अज्यूम sir. दैट. अच्छा, तो मिरर के ऊपर एक चीज लिखा हुआ है. कैन एनीवन से व्हाट इज दैट? Objects are Rear closed view. Mirror are closer than the rear. ऑब्जेक्ट, Objects are closer than हाँ, they appear. ओके, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, राइट. तो मिरर में तो ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं सबके गाड़ियों में मिरर है एंड दे आर वेल अवेयर ऑफ द यूसेज. ओके, नेक्स्ट इज लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल्स. तो नॉर्मली लाइट्स एक बार चेक कीजिएगा. हेडलैम्प जो है यहाँ पे जैसा टर्न इंडिकेटर्स, और अगर आपके घर पे आपके गाड़ी पे ऐसे हेडलैम्प से ब्लैकआउट किए हुए हेडलैम्प्स रहेंगे तो प्लीज रिमूव दैट, क्योंकि दिस ऑब्स्ट्रक्ट्स द विजिबिलिटी. जो है लाइट का फ्लो या इंडिकेटर है जो दूसरों को वार्न करते हैं कि हम लोग टर्न मार रहे हैं लेफ्ट या राइट, दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल इफ यू मास्क इट आउट. इसको टिंट बोलते हैं या मास्किंग बोलते हैं, विच दे से द व्हीकल लुक्स स्टाइलिश बट अगेन इट्स एन एक्टिवा, तो फिर ये करने में मतलब नहीं है. तो इफ एनीवन आपके घर पे ऐसी गाड़ी है तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. सेम इज विद द रियर टेल लैम्प्स. जस्ट चेक इफ द ब्रेक लाइट इज वर्किंग. ब्रेक दबा के देखिए कि लाइट जल रहा है. इंडिकेटर भी एक बार चेक कीजिए, दोनों इंडिकेटर जल रहे पीछे के, और ऐसा ब्लैकआउट करना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड.
any scooter or any car it may be. Okay, then there is one flash. कितने लोगों ने ऐसा flash face किया हुआ है night driving? And can anyone share the experience? ऐसा कुछ experience है कि ऐसा flash आ गया and you are not able to see properly? There are Yes, 52 it participants. happened. 52 participants है. 52 में से I want to hear other voices also. हाँ बोलिए बोलिए. Can anyone share the experience? सर ऐसा मतलब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया बट ऐसे मूवीज सीरियल्स में वगैरह देखे हैं ऐसा बहुत कुछ. अच्छा. इसके वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत. राइट. ओके, ये क्यों होता है बेसिकली? एनीवन जो स्कूटर चलाते हैं उनको तो पता ही रहेगा, उनको तो एक्सपीरियंस किया रहेगा. Sir, it happens. It happened with me. Like जब flashlight आँख पे आता है, you're visible. मतलब you cannot see anything. वो irritate होती है. मतलब ओके eyes get irritated and your eyes automatically closes. So फिर वो ओके. visibility we cannot see what is ahead. And इसमें कोई बीच में आ गया तो of course accident हो जाएगा. So डू यू that राइड happened. स्कूटर? Yes, yes, sir, I do. तो ये क्यों होता है बेसिकली? व्हाट इज Sir, द रीजन? actually, there are two lights, upper and dipper. So usually उसके वजह से I don't have much knowledge, but this इतना I know that if the car person is like has the upper light on, तो वो directly मेरे आँख पे जाके it will flash in my Right. eyes. As if Right. it's lower, it won't hurt my eye. It will just be visible. राइट. ओके फाइन. तो यू आर राइट. तो अपने जो स्कूटर होता है, स्कूटर में एक टाइप का ये स्विच होता है. इसको हम अपर या डिपर बोलते हैं या फिर हाई बीम और लो बीम बोलते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपका हेडलैम्प लो बीम या हाई बीम पे है या अपर या डिपर पे है. तो ये जो इंडिकेशन दिख रहा है जिधर ये लाइट स्ट्रेट है, ओके, दिस इज कॉल्ड हाई बीम. और लो बीम जो है इधर ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, दिस इज लो बीम. सो व्हाट हैपेंस इज, ये ना स्कूटर ऑल्सो, ये कार का इमेज है बट स्कूटर में भी यही केस होता है कि whenever you are riding, okay, always in the city traffic conditions always keep your headlamps to a low beam. ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, हाई बीम इज नॉट रिकमेंडेड. हाई बीम तब भी ठीक है जब का गाड़ी एकदम सुनसान जगह पे है, पूरा अंधेरा है आगे. For their clear visibility, high beam is okay, but low beam is recommended when you are riding in a city traffic, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक का स्पीड बहुत कम होता है, 30 किलोमीटर पर आवर उतना ही स्पीड होता है. उसमें हाई बीम की जरूरत नहीं है. दिस कॉजेस एन एक्सीडेंट. ओके, दिस कॉज एन एक्सीडेंट. हाईवे पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर अगर आपको लगता है कि आपके सामने वाले से जो गाड़ी आ रही है उसका हाई बीम पे है, तो आप ये जो स्विच है, ये स्विच को टॉगल कीजिए, टॉगल में ऊपर नीचे कीजिएगा, वार्निंग हिम कि भाई आप आपका भी हेडलैम्प जो है वो लो बीम पे कीजिए. ओके, जस्ट अ वार्निंग. एंड द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई, अगर आपके घर पे कोई गाड़ी चला रहा है, आपके जो स्पीडोमीटर क्लस्टर होता है जहाँ पे स्पीड सब दिखता है, वहाँ पे देखिएगा कि ये ब्लू कलर की लाइट ऑन है. अगर ऑन है दैट मीन्स इट इज इन हाई बीम एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट, ऑयल्स एंड फ्लूइड्स. सो दिस यू कैन चेक एट होम. ऑयल्स और फ्लूइड्स, गाड़ी में ऑयल लगता है, इंजन ऑयल बेसिकली फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द व्हीकल. ये आप चेक कर सकते हो घर पे, नॉट अ कंपल्शन बट बहुत सिंपल होता है. यहाँ पे इंजन ऑयल चेक करके उसका लेवल आप चेक करके, आप गाड़ी सर्विसिंग तो देते ही है बट वहाँ पे चेक हो जाता है. बट स्टिल बेटर टू सी आपका ऑयल, जो गाड़ी का ऑयल है, नीचे किधर फ्लोर पे गिर तो नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है कभी गाड़ी चलाते टाइम कभी पत्थर लग जाता है, उसका जो ऑयल का एरिया होता है वहाँ पे क्रैक आ सकता है. तो जस्ट सी दैट गाड़ी जब आप पार्क करते हो तो नीचे किधर ऑयल गिर तो नहीं रहा है, वो एक बार चेक कीजिएगा. और ब्रेक में भी फ्लूइड लेवल आता है, तो मोटरसाइकिल जो चलाते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो हैंडल के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होता है, वहाँ पे आप ऑयल लेवल चेक कर सकते हो. चेसिस, चेसिस में एक, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सॉरी. then comes, then comes
दी चेसिस पार्ट। चेसी में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहूँगा, बट येस यू कैन चेक दी बेसिक थिंग्स लाइक, ठीक है, जो सस्पेंशन होता है वहाँ से आवाज़ आ रहा है क्या, स्क्वीकिंग साउंड जिसे बोलते हैं, एक बार देखिए वहाँ से कोई साउंड आ रहा है क्या, फ्रंट और रियर से, फ्रंट सस्पेंशन जो यहाँ पे होता है। और एक बार 2 हफ्ते में एक बार, या कभी आप गाड़ी चलाते हो सडनली होता है ना, कभी गाड़ी खड्डे में से चला जाता है सडनली, तो अगर आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट ज़्यादा था खड्डे में से बहुत ज़ोर से अगर गाड़ी गया, तो बेटर है एक बार ये टायर आपके जो रोड साइड गैरेज है वहाँ पे चेक करा लीजिए कि इसका नट या बोल्ट लूज तो नहीं हुआ है, टूटा तो नहीं है, बिकॉज वी कांट से, ठीक है, हम गाड़ी चलाते रहते हैं, अल्टीमेटली दीज आर मशीन्स और ये बहुत सारे स्ट्रेसेस लेते ही है। तो जस्ट गेट इट चेक कि यहाँ पे कोई बोल्ट टूटा तो नहीं है, ये एक बार आप चेक करा सकते हो। इफ इट्स अ नॉर्मल चेक, आप जस्ट एक बार देखिए क्या होता है, कभी कभी वी कांट से किसी टायर का जो नट है वो निकल के गिर भी गया रहेगा और हमको पता भी नहीं रहेगा। तो बेटर वाइल मॉर्निंग में एक बार आप गाड़ी निकालने के लिए देख लीजिए कि यहाँ पे नट बोल्ट है कि नहीं। ओके, दिस इज अ रेगुलर चेक दैट वी कैन डू इन अ चैसी पार्ट। ज़्यादा तो आप स्कूटर्स में ज़्यादा नहीं कर सकते टेक्निकली। स्टैंड्स, अगेन गाड़ी आपने साइड स्टैंड पे रखा होगा, नॉर्मली साइड स्टैंड पे ही पार्क करते हैं हम सब आजकल। स्टैंड ऊपर लेना, जब आप गाड़ी चलाते हो ऊपर लेना ही है, और बेटर है कि वो ऊपर लेना है ये कंफर्म करके लीजिए, क्यों क्या होता है बहुत बार हम स्टैंड नीचे रख के ही गाड़ी चलाते हैं जो एक्सीडेंट बढ़ा देता है। बहुत बार ये भी होता है कि हम देखते हैं कि दूसरे लोग, क्योंकि गाड़ी की भी स्टैंड नीचे होती है, तो बेटर इन्फॉर्म कीजिए उनको कि सर आपका वो गाड़ी का स्टैंड नीचे, आप ऊपर लीजिएगा, सो दैट यू कैन प्रिवेंट एन एक्सीडेंट। ओके, so these were some things which comprises of T clocks. Okay, so I will just take to this thing. So T clocks का जो brief है, so it is tires and wheels, okay, controls, lights and electrical, oil and fluids, chassis और stand। आजकल की गाड़ी में स्टैंड में भी एक प्रोविजन है, क्योंकि इफ द स्टैंड इज डाउन आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते, या स्कूटी वगैरह गाड़ियों में भी एक वार्निंग कंटिन्यूस बीप बजता है अनलेस यू टेक द स्टैंड अप। सो एनीवेयर अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके गाड़ी में प्रॉब्लम है तो उसे जरूर चेक कीजिएगा, विच विल इवेंचुअली प्रिवेंट फ्रॉम कॉजिंग एन एक्सीडेंट। और दूसरों के गाड़ी में अगर आपको डाउट है किसी गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा है या किसी का स्टैंड नीचे है, किसी में भी आपको लगता है कि टेल लैंप या हेड लैंप नहीं चल रहा है, उनको भी वार्न कीजिएगा। दिस विल श्योरली हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सीडेंट। एनी डाउट ऑन दिस? कोई सवाल या आपको पूछना है यहाँ पे? No, sir. नथिंग, No, ऑल sir. क्लियर? ओके, फाइन, जस्ट अ सेकंड। Here, just move to the slide. Respect the laws. कितने लोग ट्रिपल सीट गए अब तक, कोई बता सकता है? ट्रिपल सीट आपके डैडी मम्मी और आप ऐसे कभी गए कभी, या आपके बचपन में फ्रेंड्स के गए साथ? थे। हाँ, बहुत छोटे थे तभी के जाते थे। जाते थे। ओके, ओके, आपके फ्रेंड्स कभी, अरे मुझे यहाँ पे सामने ही छोड़ दे, मेरे को ट्रेन से जाने, जल्दी छोड़, ट्रेन अभी आएगा, ट्रिपल सीट हुआ है कभी किसके साथ? यस और नो? The होता ही है girls are कॉलेज। mentioning in the chat box. ओके 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 ओके, यस सर, विथ फ्रेंड्स, तारा जखनूर, विथ फ्रेंड्स। आप गाड़ी चला रहे थे या आपके फ्रेंड्स गाड़ी चला रहे थे? हेलो सर, फ्रेंड्स के साथ होता ही है, होता ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर जो है दो लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है, और ऐसे हंसी मजाक में ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बेसिकली ट्रैफिक पुलिस वगैरह जो होते हैं इनका काम होता है ऐसे चीज़ों को रोकना, ठीक है। और आजकल आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट ने फाइन्स बहुत हैवी कर दिए है, बहुत हैवी फाइन जुर्माना भरना पड़ता है मिस्टेक्स करने पे। तो फाइन्स जो है ये मिस्टेक ना करने के लिए है, गलतियां ना करने के लिए है। और बेसिकली हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं और पुलिस ने पकड़ा तो हम एकदम कॉन्फिडेंटली उनको पैसा देते, बोलते सर ये ले लो आपका 50 रुपये 100 रुपये आप ले लो करके। तो
हालत ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस को भी आपके सामने हाथ जोड़ के रुकना पड़ता है कि प्लीज रूल्स फॉलो कीजिए। उनके पास और कोई जरिया तो है नहीं। तो नाउअडेज यू आर अवेयर कि आजकल उन लोग बातें नहीं करते, दे डायरेक्टली टेक द फोटोग्राफ ऑन देयर मोबाइल एप्लीकेशन और फिर वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू दे चार्ज अ फाइन ऑन योर व्हीकल। और किसी भी सिग्नल पे अगर आपको रुकाते, दे कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइन विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन योर व्हीकल। ये पता है इसके बारे में आपको? एक नया ऐप है, तो द मोमेंट आप सिग्नल कट करके जा रहे हो या ट्रिपल सीट जा रहे हो, वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, सीधा उनके मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं और आपके मोबाइल के ऐप में आपको वो फाइन जितना है और किस केस के लिए है वो आपको मालूम पड़ेगा। फाइन। तो वो कौन सा ऐप है? तो इट इज़ बेसिकली दिस वन। इट इज़ कॉल्ड, ये ऑफिशियल यूआरएल है, आप इसका मोबाइल ऐप भी सर्च कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे भी है। दिस इज अ वेबसाइट, इट इज कॉल्ड mahatrafficchallenge.gov.in। तो महाराष्ट्र में आप किधर भी रूल ब्रेक करते हो, ट्रिपल सीट हो, स्पीड लिमिट आपने तोड़ दिया, सिग्नल पे नहीं रुके, तो पुलिस अगर खड़ा है कॉर्नर पे, ही विल डायरेक्ट टेक द फोटोग्राफ एंड देन ही विल असाइन द फाइन टू यू। ठीक है, तो ये एक बार चेक कीजिएगा। अगर आपको चेक करना है तो बहुत ईजी है, ये यूआरएल डालिए, आपका गाड़ी का नंबर पूछता है वो, एंड देन यू कैन सी अगर आपके गाड़ी के अगेंस्ट कोई फाइन है या नहीं। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। और यहाँ पे आप यू कांट रियली आर्ग्यू विथ द पुलिसमैन कि मैंने कुछ किया नहीं, मेरी गलती नहीं थी। यू हैव टू पे द फाइन इन एनी केस। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, बी कॉशियस ऑलवेज। सी नेवर एवर टॉक ऑन मोबाइल फोन वाइल राइडिंग, कितना भी इम्पोर्टेंट हो। देखो, आप लोगों को कोई करोड़ों का या अपने पीएम के प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग तो नहीं, अर्जेंट मीटिंग कि आप गाड़ी रुका के आप बात नहीं कर सकते, गाड़ी रुकाओ। अगर मोबाइल फोन्स में कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्लीज डू नॉट टेक द कॉल, आराम से आके बात कीजिए, राइट? तो नेवर, इफ यू सी एनीवन टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन, आपके पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स या आपके ब्रदर जो भी है, अगर ऐसे सिचुएशन में, तो टेल देम कि गाड़ी साइड पे रुकाइए एंड देन प्लीज टॉक वॉट एवर इज मोबाइल, गाड़ी को रुका के बात कीजिए। ये जो सीनियर सब जगह दिखते ही है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट यू नो रिकमेंडेड, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बट स्टिल हम लोग कितने भी बोलते हैं एजुकेटेड है, सब कुछ है, वी आर जस्ट फॉलोइंग द मिस्टेक्स रिपीटेडली एंड दैट इज द रीजन वी आर सीइंग द स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी बीच में हाल ही में रिपोर्ट आया था कि इंडिया इज द वर्स्ट इन सॉल्विंग द रोड सेफ्टी प्रॉब्लम्स अभी के इसमें, इट वाज लाइक लास्ट वीक रिलीज हुआ एक रिपोर्ट है। सो दिस इज द रीजन, राइट? दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारी एक मनमानी रहती है कि हमें जो चाहिए हम कर लेंगे। तो दिस इज नॉट दैट, देर आर सर्टन रीजन फॉर फॉलो इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स, और वो फॉलो ही करना चाहिए। सो यू हैव टू बी कॉशियस ऑलवेज। जो पीछे बैठा पीलन है, इसको पीलन बोलते हैं हम लोग, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है एज द राइडर। द रीजन वाई हमने बहुत सारे, मैंने भी देखा हुआ है कि आगे हस्बैंड वो गाड़ी चलाता है और वाइफ पीछे बैठ के मोबाइल में रहती है, या कभी वाइफ गाड़ी चलाती है तो हस्बैंड पीछे बैठ के मोबाइल में प्ले करता है, या फिर पेरेंट्स गाड़ी चलाते हैं और पीछे बच्चा मोबाइल पे खेलते रहता है। सी बिकॉज क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक यूर अ डेड वेट। डेड वेट मतलब आप ये देखा था ना, अपना मार्केट से बोरिया लेके आप गाड़ी पे पीछे टू व्हीलर में लेके आओ तो डेड वेट होता है, तो इट इज सिमिलर लाइक वैसे ही होता है। तो इन केस क्या होता है, कभी कभी राइडर्स जो होते हैं, राइडर्स का ध्यान भटक सकता है, और राइडर्स का ध्यान अगर भटक गया तो पीलन जो राइडर है उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि राइडर को वार्न करा, अरे आगे कुछ तो है, थोड़ा आराम से चला। तो डोंट बी इन योर ओन वर्ल्ड, बी रिस्पॉन्सिबल। मोबाइल तो आप बाद में भी देख सकते, इतना कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता, क्या कि अब करोड़ों का बिजनेस का अभी आपको नुकसान होने वाला है। करोड़ों के पास पैसा रहेगा तो आप टू व्हीलर पे तो जाएंगे नहीं, बट स्टिल आई एम सेइंग ओके। देयर इज वन कमेंट, सर इवन द रोड्स आर नॉट गुड इन इंडिया एंड दैट इज आल्सो वन रीजन फॉर एक्सीडेंट। सी इंडिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव्स है एंड यू आर ऑलवेज अवेयर, एनी गवर्नमेंट एक्टिविटीज वी कांट रिलाई ऑन देम 100% कि आज रोड पे खड्डा है तो कल वो पैचअप हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो अपनी जान
अपने ही हाथ में है, वैसा है। पीएम ने बोल दिया है आत्मनिर्भर बनो, राइट? व्हाट इज दिस आत्मनिर्भर? कि कुछ भी हो हम खुद पे ब्लेम नहीं कर सकते, आप खुद ही संभाल लीजिएगा। तो दिस इज ट्रू विथ रोड कंडीशंस ऑल्सो। मुंबई की बात करें, मुंबई में हर दिन पेपर में, आप कौन से पेपर खोलिए या ट्विटर में अकाउंट्स है बहुत सारे जो सिर्फ फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं और खड्डा गिनती करने के लिए लोग उतरते हैं। दैट एनीवे इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि आज अगर आपने खड्डे का फोटो निकाला, कल वो खड्डा वैसे ही रहने वाला है। खड्डा अगर रिपेयर करते हैं दैट इज ओनली फॉर फ्यू डेज, क्योंकि उसमें मिट्टी या कुछ लगा के छोड़ देते हैं। एंड आवर इंडियन रोड्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल बोलने का मतलब ये है कब खड्डा आएगा, कब कोई जंप करेगा बीच रास्ते में, हमें भरोसा नहीं है। तो अपनी जाने वो हमारे हाथ में है, एंड वी हैव टू बी कॉशियस anytime. Okay, and that hope that answers your statement over there. And then next thing is keep safety guards. देखिए कभी भी आप टू व्हीलर में राइड करते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जो है व्हील के बहुत करीब है, राइट? दिस केयर शुड बी टेकन। साड़ी हुआ, दुपट्टा हुआ, या एक्स्ट्रा आप स्कार्फ वगैरह रहते हो, ऑलवेज सी दैट ये एकदम नीचे टैंगल ना हो, टायर या व्हील के सामने ना अटके, क्योंकि दैट इज वेरी रिस्की। So all these things are no one of the things like contributes to road safety. Accidents not necessary signal jump करने पे ही होता है, ये छोटी छोटी चीजें जो है this is very much important. तो आप जब भी गाड़ी निकालते हो, जब पीछे कोई बैठा है आपके, just ensure that everything is tucked in. ठीक है, स्कूटर्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेड, बट स्कूटर्स में भी प्रॉब्लम तब होता है जब आपका दुपट्टा या साड़ी का जो कुछ पल्लू वगैरह बोलते हैं वो नीचे तक चला जाता है कभी कभी। तो इट क्रिएट्स डेंजरस, क्योंकि हो सकता है वो दुपट्टा हवा में उड़ के दूसरे गाड़ी के मिरर के साथ जम सकता है, दैट कैन हैपन। सो ऑल दिस थिंग शुड बी एंश्योर्ड व्हाइल टेकिंग द टू व्हीलर ऑन रोड विद अ व्हील एंड राइडर। तो दिस टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। एनी डाउट्स ऑन दिस और एनी कमेंट्स और एनी, सी एवरी टाइम सी आप सब रोड पे उतरते हो, राइट? इट कैन बी नॉट योर सेल्फ एक्सपीरियंस, बट आपने खुद देखा भी होगा दूसरे कुछ एक्सीडेंट्स इसके वजह से। So it is you're open to share your experiences with respect to whatever I'm talking. So if you have anything, you can speak up, or else we can move to other slide. कुछ है आपके पास या shall I move on? Sir, all clear. Yeah. Then be within limits. अच्छा. I would like to ask 3 questions, बस उसका आंसर चाहिए. Which is this type of road? ये क्या दिख रहा है आपको, किस टाइप का रोड है ये? Curved. कर्व्ड है, Highway. ओके ओके, एक हाईवे टाइप है, ओके कर्व्ड है। तो आई वुड जस्ट से इट इज अ फ्लाईओवर बेसिकली। One way road. वन वे है, हाँ राइट, वन वे है, राइट। हाँ इधर तो बैरिकेड्स है, ओके इट इज वन वे, राइट, ग्रेट फाइंडिंग, ओके ओके ओके। देन सो इट इज अ रोड, इट इज बेसिकली अ फ्लाईओवर जो आगे टर्निंग है। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट ओवर हियर? यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर में। So there is a turning, like a steep turn. So just to aware it, that is why this the sign is given. Okay, there's a turn and this indicates there's a right turn ahead, right? Or there are some markings also on the below. You can see yellow और black में marking किया हुआ है यहाँ पे। And what is this limit? ये speed क्या है? 40? That we should not exceed above 40. So okay, there is one chat में right turn. Okay. There is one comment from Riddhi Chavan. I have heard one incident where the Odni got into the tire and the accident happened. That is a common thing. Odni जो है टायर में अटक के एक्सीडेंट होता ही है, ठीक है। सो वही तो एज अ गुड सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि ओढ़नी ऊपर लीजिए, ओके ओके। नाउ कमिंग टू बैक दिस, तो एक फ्लाईओवर है, एक वन वे रोड है, एक तरफ जा सकते हैं, राइट टर्न इंडिकेटर है कि अब राइट में स्टीप टर्न है, वो दिख भी रहा है यहाँ पे, एंड देयर इज अ स्पीड लिमिट ऑफ 40। आप 40 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, फाइन। नाउ व्हाट इफ आई से कि if I drive a car at a speed of 104 किलोमीटर पर आवर, क्या होगा इस पे? सर आगे एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आगे के तो 40 के स्पीड पे ही चलते रहेंगे और आप अगर फास्ट गए तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस कंसीडरिंग दिस इज अ फ्लाईओवर, राइट?
एक कार जा रहा है यहाँ से सीधा, बैलेंस बिगड़ जाएगा क्योंकि इधर टर्निंग भी है एंड वी नीड टू टर्न. okay, so this actually happened with one case in Hyderabad. ठीक है, so there's a video which shows कि how this accident happened. So this is a straight flyover road. Okay, जैसे हमने फोटो देखी थी, यहाँ पे इंडिकेशन है, there is one indication over here कि राइट में टर्न है, सेकंड इंडिकेशन राइट में टर्न है, थर्ड में भी इंडिकेशन राइट में टर्न और फोर्थ में भी इंडिकेशन राइट में टर्न. स्पीड लिमिट इसका भी 40 था. सो विल सी दिस वीडियो एंड देखते क्या होता है. ओके ओके, व्हाई दिस वीडियो इज नॉट प्लेइंग. Just a second. Just a second, I will just see why the video is not, I'm not able to play the video. Shall I change the mode? Okay, okay, got it. Fine. So this is the video and बस आपको observation यहाँ पे लगेगा. Fine. So this is a busy flyover in Hyderabad, basically. The road is empty now. And there goes a car at 104 km/h speed. You can see that car falling down. Right, and this car actually fell down और बहुत ही worse accident था. Okay, so this is, see, so there's a narrow escape, बहुत ही narrowly escape हुआ. Now see, what can you comment from this basically? आप क्या comment करना चाहोगे? Because everything is there, right? कार चला रहा है तो he is an experienced guy, उसके पास license है, कार है तो थोड़ा पढ़ा लिखा ही होगा, पोलो अच्छा खासा गाड़ी यूज कर रहा है. But ultimately what happened? This is the video footage from another view. So the car is yet to fall down. Okay, so such a worse condition. Okay, so see, क्यों करते लोग ऐसा? Do you have answer for this? क्यों ऐसा होता है? He is educated, maybe educated, लाइसेंस मिला है, उसको पता है कि उसको पढ़ना भी आता है कि 40 का स्पीड है, फ्लाईओवर है, आगे राइट टर्न है, then he goes at a higher speed, नहीं जमता उसको कंट्रोल करने, एंड he creates an accident, और उसका ही नुकसान नहीं दूसरों का भी नुकसान कर रहा है. So why this happens basically? Can anyone answer? क्यों होता है ऐसा? A show off. शो ऑफ, ओवर स्मार्टनेस. आकांक्षा ने लिखा है ओवर स्मार्टनेस. यस, राइट. तो ओवर कॉन्फिडेंस, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स व्हाटएवर इज सेड, जो मनमानी रहती है वो करना है, किसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज द रीजन व्हाई accidents are happening. So whenever there is a display of warning signs on the road, please ensure कि आप वो फॉलो करें. देयर इज नो अदर दिस थिंग. कोई अगर आपको जगह पे लेट हो रहा है जाने के लिए, बेटर एक 10 मिनट घर से जल्दी निकलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8 बजे का अगर आपको फंक्शन है, ट्राई टू रीच देयर बाय 7:50. ओके, 5 मिनट जल्दी पहुंचो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 10 मिनट जल्दी पहुंचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट ट्राई टू रीच sharp at 8 o'clock by risking the life of self and others. Okay, so this is what from this video I wanted to share. Okay, going to next slide. Never lose temper. झगड़ा हमेशा हम देखते हैं रोड पे, ये झगड़ा क्यों होता है रोड पे? कैन एनीवन एक्सप्लेन? झगड़ा किसी ने देखा है रोड पे करते हुए? यार उसने मेरे गाड़ी को ठोका, या मेरा गाड़ी का पेंट निकल गया, हेडलैम्प तोड़ दिया. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन? They don't follow the rules. Means राइट, रूल्स तो फॉलोइंग ठीक है, बट एक्सीडेंट होने के बाद किसकी गलती है? दो गाड़ी तो इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? देयर इज वन व्हीकल ए एंड व्हीकल बी, दोनों के बीच में कुछ एक्सीडेंट होता है तो झगड़ना चालू करते.
कैसे, हाउ विल यू मेक इट आउट कि कौन सही है, या सिर्फ झगड़ा करने पे यू विल विन द बैटल? इज इट सो? ऐसा है? No, sir. नो, राइट? सो सी, जो फाइट होता है, हैव यू ऑब्जर्व्ड अ कैट? बिल्ली को भी ऑब्जर्व किया है? जब बिल्ली एग्रेसिव मोड में आता है, व्हाट डज इट डू? और इफ यू आर ट्राइंग टू टीज द कैट, कभी कभी, या कुत्ता कभी सामने खड़े रहता है बिल्ली के, क्या होता है? द कैट ट्राइज टू डिफेंस हिमसेल्फ, राइट? बराबर है ना? बिल्ली एकदम दिखाती कि मैं गुस्सेदार हूं, तो मेरे से पंगा मत ले, राइट? हैव यू सीन दैट? तो यही Yes, sir. इंसानों के साथ भी होता है। जब भी एक्सीडेंट होता है, तो दोनों पार्टी, एक गाड़ी ए और गाड़ी बी होती है, दोनों के ड्राइवर गलती मानने को रेडी नहीं होता है, एंड बोथ ऑफ देम वांट टू शो दैट दे आर इन अ करेक्ट वे, और दोनों एग्रेसिव मोड पे आ जाते हैं। घर पे झगड़ा होता है भाई के साथ, कभी किसी का भाई और मम्मी के साथ झगड़ा हुआ रहेगा दोनों का, भाई बहन के बीच में होता है सर। होता है। तो रिजॉल्व कैसा होता है? वो झगड़ा बढ़ते रहता है, मारा मारी होता है, या एक शांति से बैठ जाता है? नहीं, बढ़ते होते हैं, कम नहीं होते। अच्छा, अच्छा, अगर कम करना है तो मम्मी को आना पड़ता है बीच में, ट्रैफिक पुलिस को लेके आना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो दैट इज द केस। तो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे आ जाता है, दोनों को फिर वहाँ पे रिजॉल्व करके वो छोड़ देते हैं। सो नॉट दैट, वन हैज टू गो काम, ठीक है, वन हैज टू गो काम, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन इन अ रोड कंडीशंस ऑल्सो। एक हम वीडियो देखते हैं जिसमें व्हाई इट इज नॉट टू गुड टू लूज टेम्पर। तो एक वीडियो है बेसिकली, यहाँ पे देख लेते हैं। तो दिस इज समथिंग, एक छोटा सा एक्सीडेंट होने वाला था, नहीं हुआ, एंड द केस इज, कार को रुकाया है और टू व्हीलर वाला आके वहाँ पे झगड़ना चालू करता है। कुछ हुआ नहीं है, बट टू व्हीलर आके बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे झगड़ते रहता है, बोलते हैं बाहर निकल, ऐसा वैसा। कार वाला एक ही बोलता है कि यार कुछ हुआ क्या आपको, कुछ हुआ तो नहीं ना, ऐसा वैसा करके। तो दैट टेम्पर गोज ऑन इंक्रीजिंग। कार ड्राइवर एकदम शांति से अंदर बैठा है, कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा है जो कुछ हो रहा है, ग्लास भी नहीं नीचे ले रहा है, ठीक है। एंड देन यू कैन सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। So he's very angry. और आगे देखो टू व्हीलर वाला, कितने लोगों को हंसी है लास्ट का देखिए। तो सी क्या होता है, टू व्हीलर जो एक्टिवा वगैरह, इनमें एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसमें गियर नहीं होता है, बराबर है, ये सबको पता है जो गाड़ियां चला रही है, ठीक है। तो गाड़ी जब ऑन रहेगा ना, तो बहुत बार होता है गलती से एक्सीलेटर हम दे देते हो, गाड़ी आगे खींच लेता है आपको, राइट? तो ऐसा टेम्पर लूज होने पे क्या होगा कि यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड एकदम शांति से सोचने का। जो अभी वो आदमी के साथ वही हो गया, उसने क्या किया, गया टू व्हीलर के वहाँ पे, और उसने बस एक्सीलेटर ऑन ही है, और उसको फिर जाके टू व्हीलर, तो सी दिस इज क्रिएटिंग डबल, और इसलिए शांत बैठ गया, ही हैड नो अदर ऑप्शन जस्ट टू वॉक ऑफ। तो हमेशा जब एक्सीडेंट होता है, इस केस में वर्स क्या हो सकता था कि ये आदमी एक कार का ग्लास तोड़ सकता था, कोई तोड़ता नहीं है, बहुत कम है, बट ठीक है, ग्लास तोड़ दिया रहता था। सी वी ऑल आर पेइंग इंश्योरेंस, ओके। इंश्योरेंस का पैसा, अगर कार है तो वी पे अराउंड 9 to 10,000 रुपीज पर मंथ, या 15,000 तक जाता है आजकल। वाई आर यू गिविंग दैट मनी टू इंश्योरेंस कंपनी? क्योंकि इन केस ऑफ एनी डैमेज यू गेट इट रिप्लेस फॉर सम नॉमिनल अमाउंट। सो इन सच केसेस गलती आप मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज एनीवन ऑन द रोड इज नॉट एन एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट नहीं है। सब अपना कैसे भी गाड़ी घर पे सीख के चला के गाड़ी लेके रोड पे उतरते हैं। एक्सीडेंट जब होता है या कुछ होता है, तो वी कांट रियली ब्लेम कि कौन सही था कौन गलत था। इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर होता है, या ऐसा कुछ झगड़ा करने का सिचुएशन आता है, बी काम, ओके, दैट इज वन थिंग। अगर वर्स होता है, तो जस्ट ट्राई टू कॉल द पोलिसमैन। ट्रैफिक पुलिस का जो नंबर है वो सबने अपना सेव कीजिए, लोकल पुलिस का, या पुलिस को कॉल कीजिएगा, पुलिस आएगा, रिजॉल्व कर लेगा। अगर वो गाड़ी का ग्लास उठा के तोड़ता है, तोड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप झगड़ के
आपका हेल्थ खराब करेगी, राइट? क्योंकि बोल नहीं सकते ये आदमी जो है ये कहीं से भी झगड़ा करके आया रहेगा, उसका गुस्सा आप पे निकलता रहेगा। वी कांट से। बेटर कीप काम एंड स्टे, व्हाटएवर हैपेंस विल हैपन ओवर देयर। एग्रेसिव मोड में अगर दोनों जाते हैं तो मार खाएंगे या फिर वहां पे इंजरी और होता है, मर्डर्स भी हो गए, नॉट लाइक कि रोड रेज के नाम पे मर्डर्स भी हो गए। सो बेस्ट वे टू सिट काम और फिर जो उसको करना है करने दे, वो निकल जाएगा, नथिंग हैपेंस। कभी भी ये मत करिए कि रुक मैं फोन करता हूँ, अब भी रुको मैं फोन करता हूँ, फोन नंबर घुमाना चाहिए, नॉर्मल सीन है, नहीं आप हिंदी मूवीज में देखते हैं, रुक रहे मैं बताता हूँ कौन है, मैं अभी फोन करता हूँ। See, this is not a सभ्य वे, right? This is not a tradition. आजकल लोग पेरेंट्स का सहारा भूल के अपने दोस्त या गुंडों का भी रेफरेंस लेते, तो नथिंग हैपेंस। आप कितने भी बड़े पहचान के लोग रहे तो नथिंग हैपेंस। इज अ सिंपल लॉ। इंश्योरेंस भरते हैं, इंश्योरेंस का यूज कीजिए। इफ द मैटर वर्सन्स, ट्रैफिक पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, एवरीथिंग विल गेट रिजॉल्व्ड एज इजी। रोड पे सीन करके कोई फायदा नहीं है। इट विल बेनिफिशियल टू यूट्यूबर्स जो यूट्यूब में वीडियो खींच के वो पोस्ट कर देंगे। फाइन। So this is one thing which I would like to communicate from here. So how to avoid road rage? शांति से। घर का झगड़ा या कुछ भी टेंशन में हो, बॉयफ्रेंड का इशू, गर्लफ्रेंड का इशू, या घर पे झगड़ा, डैडी ने चिल्लाया, भाई ने पैसे नहीं दिए, जो कुछ हो, तो डोंट थिंक ऑल दिस थिंग्स एंड गेट ऑन टू द रोड। ठीक है, आराम से निकले, शांत दिमाग से निकले। अगर आपका घर पे कुछ आपका माइंड डिस्टर्ब है, बेटर टू टेक अ टैक्सी एंड ट्रैवल वेर एवर यू वांट टू। एंड इफ रोड रेज हैपेंस, बस एक बोर्ड लेके खड़ा हो जाए, आई एम सॉरी। दिस एक्सरसाइज वाज डन बाय अस बहुत पहले। हमने कार के अंदर आई एम सॉरी का एक बोर्ड बना के रखा था, और जस्ट हमने फेक एक्सीडेंट, जस्ट झगड़ा चालू किया था, फेक एक सिग्नल का। हम लोग बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे पहले था, फिर ट्रैफिक सिग्नल पे हमने यही झगड़ा टाइप किया था। लास्ट में एक बंदा आके खड़ा होकर आई एम सॉरी बोल देता है, देन देयर इज नो वर्ड टू स्पीक, जो सामने वाला बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, वो चला जाता है फिर। सो दिस एक्चुअली क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कि हाँ ये पॉसिबल है, बिकॉज वन हैज टू कीप काम, तो फिर वो शांत हो जाता है। एंड दिस इज वन वे टू अवॉइड अ रोड रेज। रेज मतलब झगड़ा करना या आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना। ओके, सो एनी डाउट ऑन दिस और एनी सजेशन ऑन दिस रोड रेज के ऊपर? If not, then we can go ahead, right? Last 7th is give way to ambulance. Yes, ये तो अभी सब लोग करते ही है। एम्बुलेंस, इमरजेंसी व्हीकल, डोंट ट्राई टू फॉलो इमरजेंसी व्हीकल। एम्बुलेंस सिग्नल तोड़ के जा रहा है, उसके पीछे कभी भागिए मत। एम्बुलेंस का ड्राइविंग, एम्बुलेंस ड्राइवर का स्किल है वो अलग होता है। दे कैन अप्लाई द ब्रेक्स एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है। सो नेवर फॉलो देम। एनीवर यू सी एन इमरजेंसी व्हीकल कमिंग फ्रॉम योर बिहाइंड ऑन द मिरर, बस आप आपके गाड़ी लेफ्ट में खड़ा कीजिए, दे विल मेक देयर ओन वे। हीरोइज्म बनने के लिए एम्बुलेंस के आगे जाके रास्ता मत दिखाइए। दे आर वेल ट्रेन ड्राइवर्स, उन लोग आगे निकल जाएंगे। डोंट डू दैट। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है, अगर आप सिग्नल पे खड़े हो, ठीक है, एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है और सिग्नल या ट्रैफिक जैम बहुत लंबा है आगे, देन यू कैन डू वन थिंग। आप कार से निकल के आगे के कार वालों को गाइड कर सकते हैं कि आप लेफ्ट में लीजिए ताकि एम्बुलेंस आगे जा सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे एम्बुलेंस होते हैं, जैसे मारुति की ओमनी वैन होती है ना, वैसे छोटे एम्बुलेंस होते हैं, सायरन बहुत छोटी रहती है, वो आगे तक सुनाई देता नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन, इफ यू सी अ ट्रैफिक सिग्नल में कोई पुलिस खड़ा है आगे और ये एम्बुलेंस का सायरन ज्यादा लाउड नहीं है, you can go and inform that police, sir एक एम्बुलेंस खड़ा है उसको जगह नहीं मिल रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस will do the needed, that can be done. Okay, so we had kept an exercise कि सब ने एक विसल सब साथ में रखना चाहिए। इवन आई कैरी अ विसल ऑलवेज। एक विसल होता है छोटा सा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी काम आ सकता है टू गाइड द ट्रैफिक और वॉट एवर, तो एक विसल हमेशा रखना एक अच्छी बात है। सो ऑलवेज मेक वे फॉर द इमरजेंसी व्हीकल, डोंट ब्लॉक इट। फाइन, बी ए गुड समरिटन। अभी नॉर्मली एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होता है, कैन एनीवन एक्सप्लेन? कभी कुछ ने आपने देखा ही होगा ना, एक्सीडेंट हुआ एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? Sir, either people ignore or they start shooting. दोनों में से एक होता है. Like there are very few people who will come and help you. ओके, तो नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, कैसे हो गया, क्या हो गया, जैसे देखते फिर डिस्कशन करते हैं कि यार ऐसा था वैसा था करके। तभी बोलते हैं अभी क्या करना है, पुलिस को बुलाना नहीं बोलना है, या फिर अपने बंदे रिकॉर्डिंग करते, शूटिंग करना चालू कर देते। तो सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट इज ये चीज़ें, और नॉर्मली डेथ वहाँ पे हो जाती है। क्रिटिकल चीज़ें जो बचा सकती जाती है वो हम होते नहीं। बेस्ट वे, इफ यू डोंट वांट टू हेल्प,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन डायल 108, दैट इज एन एम्बुलेंस नंबर, इमरजेंसी नंबर होता है 108, एम्बुलेंस उस लोकेशन पे आ जाता है एंड देन दे विल हेल्प आउट। ओके, सो दिस इज वन थिंग यू कैन डू। सेकेंड थिंग इज गवर्नमेंट का पहला एक इशू था कि पीपल आर अफ्रेड, अगर मैं लेके जाऊंगा बीच रास्ते में कुछ हुआ तो मेरे पे पूरा ब्लेम आ जाएगा, वैसा नहीं है। बहुत पहले इश्यूज होते थे, बिकॉज कांट से ना जो एक्सीडेंट हुआ रहता है वो आपके गाड़ी से हुआ है और आप खुद बोल रहे कि दूसरे के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है करके। सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई टू अवॉइड सच सिचुएशन। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि दे शुड नॉट रिवील द आइडेंटिटी कि किसने लेके आया है यहाँ पे। इफ यू आर ट्रांसफरिंग एनी पेशेंट टू द हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में आपका नाम वगैरह जो है वो रिवील नहीं करना चाहिए, ऐसा रूल भी, और रिवील करते भी नहीं है। ओके, तो दिस इज वन थिंग, एंड 108 जो है दैट इज सेकेंड थिंग। दूसरों के गाड़ी पे डिपेंड करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मुंबई में वगैरह अच्छे खासे रिक्शा ड्राइवर्स है या टैक्सी ड्राइवर्स है जो मदद, सिर्फ और सिर्फ ये मदद करने वाले भी लोग हैं। रोड साइड में एक्सीडेंट में कोई है केसेस तो लेके जाते, बट बेस्ट फ्रॉम योर पार्ट इज 108 को कॉल करो and that is it। and from safety perspective, government जो है they are offering reward also, okay, to rescue the crash victims। कभी 5,000 rupees is what the reward is given basically। so see, this is a part of nothing like एक humanity का चिप से होता है कि हम लेके जाए पैसे तो ठीक है, but if anyone को ये जो चीजें है ये और प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5,000 रुपीज ऐसा रिवॉर्ड भी रखा हुआ है। एंड दिस इज एक्टिवली डूइंग इन केरला में एंड ऑल हॉस्पिटल्स में आपका रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं लिया जाता है, एंड यू आर जस्ट टोल्ड कि आप चले जाओ, और हॉस्पिटल जो है वो प्रोसेस में लग जाता है बाकी के चीज़ों में, एंड यू आर एलिजिबल टू गेट एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज। ठीक है, एंड दिस इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, ये हर एक स्टेट में लिखा हुआ है, हर एक स्टेट के लिए इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुआ है, कितने जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा पता नहीं है। बट सी, दिस इज नॉट अबाउट द मनी, बट इट इज ऑलवेज अबाउट हेल्पिंग अदर्स इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, बट इफ दिस इज गिवन, ये एडिशनल हम देते हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि लोग थोड़ा और कुछ लोग मदद करना आगे आएंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर आल्सो हेल्पिंग आउट दी, दिस इज द वे ऑफ हेल्पिंग आउट द पीपल। तो ऐसा इन लोग अभी चालू कर रहे हैं। सो इट इज always necessary to make the people aware of this thing कि ऐसा हेल्प करो। इफ दे हैव पैसे नहीं है तो ठीक है, पैसा मिलने के लिए जो कुछ है they can do। So I think see, we are done with this 8 mantras, right? This was the 8th one, yeah। So this is the 8 mantras that we have I have taken you through। इसके अलावा आगे कुछ वीडियोस और वगैरह है, छोटा लर्निंग्स है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, या ऐसे कोई चीजें जो आपने पहले सुनी नहीं थी और आपने आपको अब भी मालूम पड़ा, ऐसे कुछ चीजें हैं यहाँ पे? कि मेन जो टॉपिक्स है 8 टॉपिक्स यहाँ पे लगभग कवर हो गया है यहाँ पे। एनीथिंग यू थिंक दैट ये ऐड किया रहता तो अच्छा होता था? बिकॉज आई हैव जस्ट लेफ्ट आउट फ्यू थिंग्स। जो बेसिक चीजें हैं वो, जैसे मैं बोला, इट विल टेक अनदर 3 to 4 आवर्स अगर मैं सेशन लूँ तो 1 घंटे में 8 चीजें इंपॉर्टेंट, विच आई एज्यूम कुछ लोगों ने सुनी नहीं होगी। सो योर ओपिनियन ऑन दिस, एनीवन? सो गए क्या सब लोग? Many of the things I got to know from this session। okay, okay, सेशन खत्म नहीं हुआ है अब तक, तो बोलेंगे सेशन खत्म। Not losing your calm wala video that was the one that you showed. That was something different. Like usually we lose our calm generally. So okay, fine, ठीक है। okay। So I'll just proceed ahead now। This is there's a small video coming up। So this is a summation of whatever we have seen, okay, जो हमने अभी तक देखा है। तो अभी इस वीडियो के जरिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे आपसे सुनना है। सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक फोटोग्राफ है गाड़ी का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सो आई नीड योर कमेंट फ्रॉम। There is no mirror. मिरर नहीं, ओके, राइट। इसमें बेसिक चीजें, जैसे गाड़ी में मिरर नहीं है। ओके, सो आई गॉट द फर्स्ट आंसर।
I am just playing the video. I'll just pause the video. Okay, fine. So pause the music. तो बाइक जा रहा है. Sorry. Okay, so this is the crash happening. कार के साथ आपने कुछ ऑब्जर्व किया था? अच्छा, अब बताइए why this accident happened basically. सर बिकॉज वो अवेयर नहीं था, वो गाड़ी इंडिकेटर दे रहा था राइट साइड का, तो वो Okay. बाइक वाले ने रुकना चाहिए था क्योंकि उसको राइट साइड जाना था। एक्चुअली यहाँ पे दोनों का गलती है क्योंकि उसने भी मिरर से देखना चाहिए था कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है, Right. और जो Right. पीछे जो बाइक वाला उसने भी आगे उसको अवेयर रहना चाहिए था कि आगे वाला गाड़ी इंडिकेटर दे रहा है, मतलब उसको जाना है वो साइड में, तो उसको रुक के उसको लेफ्ट साइड से जाना चाहिए था। ओके ओके, एक आकांक्षा ने लिखा है सेल्फ शूटिंग. आकांक्षा, सेल्फ शूटिंग जो है दिस आर बेसिकली कैमरास, ये हेलमेट के ऊपर लगाया जाता है. अभी कुछ स्टेट्स में ये शूटिंग बैन किया है. बेसिकली सेल्फ शूटिंग इज नॉट अ क्राइम, बट प्रॉब्लम क्या है कि रिकॉर्डिंग करना अभी अलाउड नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में बोला था. तो केरला में एंड ऑल दे हैव बैंड दिस थिंग. ओके, सेल्फ शूटिंग इज नॉट टेकन बाय अ मोबाइल फोन. एक कैमरा होता है which it is mounted on the helmet, so that is not an issue. Okay. कार का इंडिकेटर यहाँ पे ऑन मुझे तो नहीं दिख रहा है. द लाइट विच यू सी इज द टेल लैम्प. ओके, इंडिकेटर मुझे यहाँ पे तो मुझे बंद दिखा. वन हैज रिक्वेस्टेड, can you play the video again? Okay, I will play the video again. The biker should have overtake from left side of the car. Overtaking from left side is not allowed. That is written by one of the participants. Overtaking from left is not allowed at any case. He should have applied the brake if the car comes in, but car वाले की भी गलती थी, उसने suddenly right ले लिया. Okay, so I'll just play the video again. मुझे कार का इंडिकेटर ऑन तो दिखा नहीं, इधर तो इस केस में तो दिखा नहीं. I'm just playing the video again. I'll just pause it. अभी तक तो इंडिकेटर ऑन नहीं है. Is it on? शायद से ब्लिंक हो रहा है. Okay, मुझे दिखा नहीं. Okay, now the accident happens. Okay, and then इसमें ये भी अभी मुझे ब्लिंक दिखता हुआ, यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है. दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर, बट मुझे उस तरह तो मुझे दिखा नहीं था. ओके, सो फाइन. सो हियर द केसेस, जब भी आप मेन रोड पे उतरते हो गाड़ी लेके, एक बार रुकिए, इंश्योर कीजिए, लेफ्ट और राइट में देखिए क्योंकि पब्लिक कहाँ से भी आ सकता है. तो लेफ्ट और राइट देखिए. इफ द रोड इज क्लियर, फिर ही आप आपका गाड़ी रोड पे उतारिए. अगर आप सोसाइटी के गेट से गाड़ी उतार रहे हो, सोसाइटी से, या कभी होता है ना सोसाइटी नीचे की तरफ होता है और मेन रोड थोड़ा ऊपर होता है, तो ऐसा कुछ रहेगा, तो जस्ट एंश्योर द रोड इज क्लियर एंड देन आप गाड़ी रोड पे उतारिए. ओके, एंड इंडिकेटर टर्न मारने के कम से कम 100 मीटर पहले इंडिकेटर दीजिए. 100-200 मीटर पहले इंडिकेटर ऑन कीजिए ताकि जो पीछे आपको उनको मालूम पड़े कि भाई मैं गाड़ी टर्न मार रहा हूँ. ऐसे केस में द कार ड्राइवर कुड हैव डन वन थिंग, ग्लास नीचे करके हाथ से दिखा सकता था कि भाई मैं टर्न मार रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटा टर्न था उसके लिए. राइट, हॉर्न देना चाहिए था. ओके, वन पार्टिसिपेंट हॉर्न देना चाहिए था. यस, इफ द राइडर इज फीलिंग कि कुछ तो वो ये है, तो हॉर्न देना चाहिए था. दैट इज आल्सो वन सजेशन. गुड. Sir, also the biker also did not stop. वो या ऐसे दैट्स चलता ही ही गया डिडंट, आगे, हाँ, वो कट चलता मारने गया. के लिए. राइट, राइट. सो वो उसका भी गलती है. ओके, फाइन. देन विल कम टू नेक्स्ट वीडियो. तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं. ओके, कभी भी ऐसा एंट्री नहीं करना चाहिए. ओके, व्हेन यू आर एंटरिंग द मेन रोड, नेवर एंटर इन अ सिमिलर फैशन, क्योंकि जो रोड का राइट साइड होता है, सो दिस इज से एक डायरेक्शन में राइट साइड इज हाई स्पीड का, लेफ्ट साइड में स्लो मूविंग गाड़ी होता है. तो कभी भी ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए विच कैन क्रिएट अ मिस्टेक. ओवर स्मार्ट गाइस 3 लोग हैं, हेलमेट नहीं है, तो मनमानी चलती है. बट जो आगे देखेंगे आप, इट कैन बी अ डिस्टर्बिंग थिंग. ठीक है, तो हियर गोस दैट. तो सी, एज सेड, इंडियन रोड्स आर अनप्रेडिक्टेबल. इस रोड में
खड्डे तो है नहीं, राइट, इस रोड में खड्डे तो है नहीं, रोड तो बहुत ही अच्छा है, बट बीच में क्या आ गया, गाय आ गया, ठीक है, एक गाय आ जाता है एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द बाइक. So this happens in India and that is why we have to see that our roads being unpredictable, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस केस में, we can't do anything. So we have to ride within limits, रेस करके कोई फायदा नहीं है. This is one learning from this video. Then coming to next, जो मिलना था उनको मिल गया, ठीक है. Similar situation over here, स्पीड अच्छी खासी है, 70-80 का स्पीड लग रहा है, बट यू कैन सी अ डॉग जंपिंग इन फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल, ठीक है. अगेन इससे क्या मिलता है सीख, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, इधर भी तो मेन रोड है, देयर आर नो व्हाट यू से, ओके, तो यहाँ पे भी कोई खड्डे वगैरह है नहीं, बट स्टिल एक्सीडेंट हुआ क्योंकि डॉग बीच में जम कर. सो इंडियन रोड्स आर अनप्रेडिक्टेबल, स्पीड लिमिट्स इतना रहना चाहिए ताकि आपको गाड़ी कंट्रोल हो. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट वीडियो. ओके, दिस इज वन वीडियो. सो दिस वन बाइक यहाँ पे ब्रेक मार रहा है. ओके, ये गिरने का रीजन था बिकॉज सी इफ यू लुक एट द स्टार्टिंग, सॉरी, ओके, आपको दिख रहा है पानी यहाँ पे, राइट, Yes. कभी भी पानी रहेगा. सी एक केस का मैं बोलता हूँ, जब आप गाड़ी चला रहे हो आपके सामने वाटर टैंकर जाता होगा कभी, ठीक है, वाटर टैंकर में से पानी का ड्रॉपलेट्स गिरता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया? ऐसा अगर हाँ. रहेगा तो नेवर राइड ऑन दैट वाटर. ओके, फाइन, स्लिपरी हो जाता है, राइटली मेंशन बाय आकांक्षा अगेन, द वे स्लिपरी रहता है वो एरिया, और उस टाइम में अगर ब्रेक दबाते हो, देखो अभी क्या होगा, आगे वाले मोटरसाइकिल ने ब्रेक दबा दिया, उसने वहाँ पे कुत्ता देखा, वहाँ पे एक डॉग है वो क्रॉस कर रहा है, आगे वाले मोटरसाइकिल ने ब्रेक दबा दिया, बट ये जो भाई साहब है इसने इतना सडनली ब्रेक लगाई, इसको गाड़ी स्लिप हो गया, एंड द रीजन वाज इस पे पानी था एंड द व्हीकल गॉट स्किडेड. ओके, इसके आगे देखते हैं क्या होता है. ये तो गिर जाता है नो डाउट, बट मजे की बात यह है कि इसके पीछे और एक बंदा गिरता है, राइट, तो दोनों के बीच में देयर आर टू मोटरसाइकिल्स बेसिकली, दो मोटरसाइकिल गिर रहे, तो एक के पीछे एक चिपक के गाड़ी चला रहे, सो दैट शुड नॉट, ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस दोनों बाइक्स के बीच में. ओके, सेव कार हो या बाइक हो, ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस ताकि आपको टाइम मिले वो ब्रेक लगाने के लिए. फाइन, एंड द लास्ट लर्निंग, अच्छा ये एक वीडियो है लास्ट वन. सो विलेज रोड्स में, अभी रोड देखो कितना छोटा है, ऑलवेज राइड स्लो. ओके, घाई मत करो, विलेज रोड है, गाय आ सकता है, कुत्ते आ सकते हैं, बकरी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट सी द वे दिस बाइकर्स आर राइडिंग इररिस्पॉन्सिबली, और एक्सीडेंट कैसे होता है. फाइन, तो हियर गोस, अभी दोनों के बीच में रेस भी चल रहा है. कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस, शो ऑफ, जो कुछ है, एवरीथिंग इज कमिंग अप. ओवरटेकिंग अच्छा खासा हो रहा है, एंड देन हियर गोस. ओके, तो ये भी आपको समझ, सो दिस इज ऑल लाइक यू नो पुटिंग आवर लाइफ इन द रिस्क. ये खुद का नहीं है, खुद का लाइफ तो रिस्क में डाल रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग और दे आर मेकिंग अ रिस्क इन अदर्स लाइफ. जो स्कूटर वाला था या कार वाला, उसका भी वो जान खतरे में डालता है, कि कार वाला हो सकता है एक्सीडेंट होके वो आगे किसी झाड़ को भी टकरा सकता था, तो एनीथिंग वुड हैव हैपेंड. राइडिंग इज गुड, टू व्हीलर है, राइड का मजा लीजिए, ड्राइव स्लोली, राइड स्लोली, एंजॉय योर राइड. ये हमेशा एक मकसद होना चाहिए पिकनिक का या टूरिंग का, नॉट अ रेसिंग. अगर रेस खेलना है तो वी कुड हैव ऑलवेज डन ऑन अ रेस ट्रैक. ओके, सो आई थिंक वी हैव डन विद द 8 मंत्रास. एंड कोई बोल सकता है ये क्या होता है, ये 8 यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइसेंस के टाइम का एग्जाम होता है.
अच्छा, मतलब आपने दिया है ये 8 टेस्ट? No, one of my friend gave that. So she was अच्छा, you have a license? no. No, no, okay, fine. Okay, so this is the test 8 ऐसा मारना पड़ता है, और फिर if you complete this, then you get a driving license by which you are eligible to drive the 2-wheeler, और कार में भी होता है 8, उसमें H होता है basically. Okay, H format, Sir. alphabet H format. Okay. Sir, can I say something? So any, yeah, sorry. Sir, can I say something about that 8 one? The 8 that you showed right Okay. now. हाँ, तो Sir, 8 recently, मतलब, yeah, tell me. no, sir, actually, I wanted to say something. Like, Yeah. ये नहीं होता है in today's, like, this thing, अभी के इसमें, because I had recently given my driving test, like, few months back, and literally, I had given for Activa, and I was very shocked personally, because when I went, there were so many people already, so मेरे को फटाफट से Activa पे, first they took me in the car, I had both car and Activa. कार जबकि मुझे बराबर से नहीं आता था, the one person sat beside me and almost he was only driving, like उसके पैर के उधर भी सारे controls थे. So he was only driving. He just told me, just take a circle, and the police person who was like देख रहा था, वो सिर्फ ऐसा चश्मा लगा के, he was just sitting आराम से, and उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. He's not even looking at me, taking a turn. And मेरे को कुछ मतलब चलाया भी नहीं होगा. I did not drive also. Like एक circle लिया, हाँ मैडम हो गया. And Activa, they told आपका पास Activa है ना खुद का? मैंने बोला हाँ. तो बोला लेके आओ. I was just sitting on my own Activa. मैंने मतलब I did not even like drive for like 5 seconds and they gave me okay madam हो गया जाओ आपका हो गया. And that's how I got my license का this thing. I was so shocked कि they're not even considering सब कुछ मतलब everybody was giving like this only. सबको ऐसे license दे रहे. See, that is the This was a very problem funny with that is the problem. आपने सही बोला. सर क्या tell me? सर ये मोस्टली तभी होता है जब एजेंट के थ्रू जाते हैं, तो एजेंट जो रहता है वो बाजू में बैठता है और वो ही कंट्रोल करता है, क्योंकि Right. लाइक एडवांस में हम लोग ने पैसा पे कर दिया रहता है फॉर लाइसेंस एंड ऑल. हाँ. तो अभी यही होता है. मेरा भी ऐसे ही हुआ, बट मेरा कार का नहीं था एक्चुअली, मेरा एक्टिवा का था. तो पुलिस भी था और हमारे इधर एकदम स्ट्रिक्ट होता है, तो उन लोग पूरा देखते हैं लाइक इंडिकेटर वगैरह सब दिया कि नहीं, Right. और सब हेलमेट प्रॉपरली पहनने का सब तो ही मिलता है, नहीं तो नहीं. ओके, तो आप क्या बोलते हैं, एजेंट के थ्रू जाना चाहिए या डायरेक्ट जाना चाहिए? सर अभी सारे एजेंट के थ्रू ही जाते हैं, तो अच्छा, ओके. क्योंकि फटाफट होता है, सब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. टाइम मैनेजमेंट. तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम गाड़ी चलाने के लिए काबिलियत है, राइट? सर किसी को भी लाइसेंस मिल जाता है, फिर कोई भी गाड़ी चलाता है. अच्छा, आकांक्षा ने डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट ही कहो. सी मैं भी वही बोला. सर मोस्टली कोई एरियाज में ऐसा है कि उनको मिल जाता है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. आप कौन से एरिया से हो? मैं थाने वसंत से. अच्छा, ओके ओके. हाँ, तो वहाँ पे लाइक जब भी मैंने एग्जाम दिया था, वहाँ पे एक आदमी था, वो एक लाइक एजुकेटेड एकदम सही, और उसने कार का लाइक उसको कार का चाहिए था लाइसेंस और स्कूटी का, दोनों का चाहिए था, बट उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं था, उसको आता मतलब आया ही नहीं कुछ, और उसने कुछ किया भी नहीं, तो उसको मिला ही नहीं, तो उन लोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम आओ. तो अच्छा. हमारे यहाँ पे तो ऐसे देते नहीं. अच्छा, नहीं मैम, ऐसी मैंने भी जो लाइसेंस लिया, इट वाज इन ईयर 2005 की बात कर. 2005 में मैंने लाइसेंस लिया था, उसमें भी 8 का मुझे ड्रॉ करने को लगाया था. सॉरी, या तो मुझे भी 8 का ये जो ड्रॉ करने बोलते हैं, 2005 की बात है. तो मैंने लाइसेंस पुणे में लिया था, पुणे में मैंने लाइसेंस लिया. तो हमको क्या था कि अकेले नहीं था, तो एंट्री में बहुत लोगों को एक साथ इन लोग छोड़ देते, 4-5 लोगों को, ठीक है. तो होता क्या है ना, यहाँ से एंट्री अगर करते, तो जब मेरा राउंड में यहाँ तक कवर करके यहाँ पे आऊंगा, तो इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ लोग ने यहाँ पे एंट्री जस्ट किया रहेगा, राइट. तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गाड़ी ऑफ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है. तो उस टाइम पे स्ट्रिक्ट था. एजेंट्स भी थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एजेंट्स भी थे, बट कहीं ना कहीं वो सिस्टम पता नहीं. पुणे में जहाँ तक मैं अभी देख रहा हूँ, वहाँ पे ट्रैफिक पार्क करके आया हुआ है. ट्रैफिक पार्क में आपको कंपलसरी टेस्ट देना पड़ता है. वो टेस्ट का रिकॉर्डिंग भी होता है ऑन सीसीटीवी.
और उसके बाद आपका लाइसेंस इशू किया जाता है। स्ट्रिक्टनेस आ रहा है सब जगह पे, एक एक करके आ रहा है। एजेंट्स का जो रोल है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ गोइंग ऑनलाइन। तो दे आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज, बट यस एज अ सिटीजन्स हम लोग चीज़ें जल्दी करने के लिए, जल्दी फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग एजेंट्स का सहारा लेते ही है। एंड गवर्नमेंट का सिस्टम है, थोड़ा बहुत करप्शन तो होता ही है। तो एक ही तरीका है, अगर आपको लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, अगर आपको एजेंट के थ्रू नहीं जाना है, अगर आप करप्शन या एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते, बेटर यू कैन गो डायरेक्टली। मुझे पता है, मैंने लर्निंग लाइसेंस 35 रुपीज़ में लिया था और डायरेक्ट लाइसेंस 90 रुपीज़ में लिया था मैंने। तो ये एक जरिया है। सो नेचुरली इफ सिटीजन सोचते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट ही जाएंगे, तो धीरे धीरे एजेंट्स का रोल भी खत्म होने वाला है। बट एजेंट्स का रोल भाई फिलहाल तो अभी थोड़ा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जो इंटरवेंशन है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन नाउ। ओके, एनीथिंग मोर? No, sir. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट। सो कोई क्वेश्चंस है पूरे वेबिनार को लेके? एनीथिंग यू वांटेड टू ऐड और एनीथिंग यू वांट टू शेयर या एनीथिंग यू वांट टू आस्क? इंश्योरेंस है सभी के गाड़ी में? जिसने एजेंट थ्रू लाइसेंस लिया, डायरेक्ट लाइसेंस लिया, कौन था? आकांक्षा? Yes, sir. इंश्योरेंस से, ओके। विच इज दैट इंश्योरेंस? डायरेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी? अच्छा, चलेगा, okay, fine, no worries, okay. So we are done with the webinar now. Before completing, एक pledge लेना है, okay? तो I will read the pledge and आपके silently you can also read line by line, okay? So shall I start? Yes, sir. Okay. So I pledge to drive safe. I pledge to wear a helmet while riding a two-wheeler. I pledge to obey traffic signals and always stop on red light and not on the zebra crossing. I pledge not to drive aggressively or when angry or emotionally upset. I pledge to never use mobile phone while riding. I pledge to respect other road users. I pledge to always give way to an ambulance. For my own health and safety, for my family and for my loved ones, I understand and I pledge to follow all driving safety rules. Okay, so this is the pledge that we always take after this road safety awareness program, and this pledge has to be there always, everywhere, because whenever you are taking the key for starting your vehicle, you should take this pledge and go out, then only your day will be safer. नहीं तो problem आ सकते. If you compromise with any of the one thing, then it will be different. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, you will get a certificate from there, okay, if you take a pledge on their website. So this is issued by Ministry of Road Transport and Highways, okay. You have to go to their website, वहाँ पे आपको pledge है, that pledge is a bit smaller, मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया मेरे इसमें. After you take the pledge, you will be redirected to a pledge wherein you have to put your name, phone number and all. आपका email ID डालना है और आपको एक certificate मिलेगा which looks like this. So this is the road safety pledge and this is given by Ministry of Road Transport and Highways, and it is written, this is to certify that Rohit Chandrasekharan, because I have taken the pledge, has taken the road safety pledge and committed himself or herself to consciously cooperate in promoting road safety by obeying traffic rules and helping road accident victims. Okay, so ये certificate चाहिए आपको? हाँ Yes, कि sir. नहीं? एक ही को चाहिए? Yes, sir. Okay, fine. So okay, so there is a link on the chat box, okay, there's a link on the chat box, so you click on that. फटाफट आप वो प्लेज पढ़िए, वहाँ पे 4 या 5 पॉइंट्स है, वो प्लेज पढ़िए और फिर
उसके आगे बटन रहेगा, वो क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और लोकेशन डालना है, एंड देन दिस सर्टिफिकेट विल बी redirected to your mail. Okay, so this activity you can do, and then we will just give you some time to do this. Or else, ma'am, is there any way to confirm, like they can do it later? So we will be having an activity of this, and you will be keeping a record who all have filled the certificate. We will be telling that at the end once you finish your. Okay, fine. So okay, fine. So it is good to keep this record, because I think you can collect from the students also, right? Whoever participants are there, they can just upload via Google Drive saying that these were the participants and they have taken the pledge on that website, the government website. Okay, fine. So moving ahead. So ride smart, ride safe, and I think we can conclude with the webinar. I have taken a long time. It is more than 1 hour which I have taken. So anything you would like to add? Okay, there's a feedback form also. There's a feedback form which is circulated on the WhatsApp chat. Sorry, not WhatsApp, sorry, the Zoom chat box. The voice is not audible. Am I audible now? Yes, it is audible. Good. Alright. So, sir, thank you so much for what you said, sir. Actually, we had a target of Ma'am, your 1 hour, voice is but cracking. since I think you can type the message on the chat box. now am I audible? Yeah, it is audible. Girls, am I audible? Yes, ma'am. All right. So thank you so much, sir. I understand road safety awareness was quite a bit a long topic, and to cover up in a period of 1 hour was not enough. So I extremely sorry for uh, having actually extended the session, but I hope the session was quite fruitful to each and every participant over here. And girls, as I had shared this before with the students, you will be having an activity based on this, as in we were thinking that once you have finished this session, after listening to this session, we will be asking you girls to prepare a PPT, all right, in which you will be formulating what all things are actually needed for a road safety awareness thing. ठीक है, आप लोग खुद से either you can make it individually or you can team it up, you can make groups and you can discuss among yourselves. And I understand even NSS people, I guess NSS students are here, NSS representative and some volunteers maybe. Yes, ma'am. Are they here? Yeah. You girls have already had a Yes. session of road safety awareness of almost 3 hours, right? Yes. Yes, ma'am. Yeah. So even you are aware of this road safety campaigning thing. So even you girls can team up and you can create a proper nice PPT in which you will be actually jotting out points, what all things are actually needed to be known to the audience. And as you are the leaders of your different classes, you will be orienting the your colleagues, your friends,
about the importance of road safety. I'm not saying कि चलो आप अपने क्लास के GR हो तो आप लोग खुद के क्लास को ओरिएंट करो, नहीं, यू कैन इंटरचेंज योर क्लासेस एज वेल, ताकि वो एकदम ढीला ढाला ना हो, ठीक है. For starting, you can actually team it up, or you can do it individually. You can tell me who is ready to take up this step, okay? And whoever is making these PPTs, and you can even go to your particular class. You can set a time for that particular class, and you can take that presentation. And we will be giving them certificates that you have conducted a road safety awareness session. You have imparted that knowledge जो भी है, एंड व्हाटएवर. अगर एक पीपीटी आप लोग बनाने का टाइम, ऑब्वियसली फर्स्ट यू विल बी शोइंग अस कि क्या आप लोग ने पॉइंट्स जॉट आउट किए हैं, एंड वंस वी से गो, एंड यू कैन जस्ट ओरिएंट देम टू डिफरेंट क्लासेस. ऑलराइट, सी एज क्या बोलते हैं, प्रॉपर सिटीजंस, it is our responsibility also to have that kind of a sense कि रोड पे चलना वो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ना हो, किसे हम लोग अपनी तरफ से सेफ्टी कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग से करें. Towards a safe our journey. So let's hope कि we get along this through. And thank you so much, sir, for your time. And I request, yeah, sir has shared something in the chat section actually. Yeah, he is the founder of Tech and Wheels. He has been posting all these things. Even sir has said कि अगर in case the PPTs are good, अगर and obviously आप लोग जब भी ओरिएंट करेंगे तो we request you to take a proper recording of it, ठीक है, जो भी जिसको भी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. एंड सर हैज एग्रीड कि वो recordings he will be publishing in his website, ताकि it would be visible to a larger crowd. All right, so that would be an activity. And one more activity is government की website में, as you have seen earlier, कि they are giving certificates as you take a pledge. If you think कि आप लोग ready हो pledge लेने के लिए, I request you to take that pledge and get that thing done and get the certificate. ठीक है, it is the responsibility of each and every one of you कि get this thing done to your classes. सभी को बोलना है कि आप लोग को ये प्लेज लेना है और आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, एंड दैट सर्टिफिकेट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो इट इज अ वेरी गुड थिंग. ऑलराइट, एंड you need to keep a record ki how many of them have actually what do you say, they have filled up that pledge and they have got the certificate. We will be having that record ki these many people have from our college have taken that pledge from the government website. All right, is it clear? Yes, ma'am. Yeah, even the NSS people, you might be doing a lot of activities related to road safety awareness, I believe. Yeah, तो आप लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक as an initiative लेके add on करके you can team up and you can do this thing, ठीक है. And especially NSS के जो आपके volunteers हैं, make sure all the NSS girls fill up this certificate, ताकि उनको एक सर्टिफिकेट का ये मिलेगा, और आप लोग भी अपने इंचार्ज को रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैम हम लोग के सारे एनएसएस वॉलंटियर्स ने प्लेज ले लिया है, एंड वी हैव गॉट आवर सर्टिफिकेट्स करके. ऑलराइट, yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And thank you so much, sir. I request Dolly to please give a vote of thanks. Oh, yes, ma'am. So I hope I'm audible. So good evening, everyone. I am Dolly Jain, President of Dr. BMN College of Home Science. I would like to thank sir on the behalf of the entire college and for imparting such an informative webinar to all of us, and also to make us more conscious about road safety and our responsibility as a citizen. So thank you so much, sir, for your time and for such an amazing webinar. Thanks a lot to all for patiently listening to the seminar. And if again, if any of your friends or colleagues want to have such seminar or webinar at their respective
respective colleges or any of the institutes, or group of 10 want such type of webinar, then this can be done. It's not like it is limited to colleges. It is always good to share the knowledge and spread this awareness among the citizens, your friends. Okay, so thanks a lot. So once again, thanks. Thank you so much, sir. We can now end this session. Girls, do you have any doubts? And please do fill the feedback form. It will be a kind of an attendance as well. We are automatically generating the attendance, but